بلیٹن کا آغاز کریں گے انصاف سرکار IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے غریب عوام کا خون چوسنے لگی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار بجلی کے فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 74 پیسے اضافہ کر دیا گیا، جو صارفین سے دسمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ شہریوں نے اضافے کو ظلم قرار دیا۔ اپوزیشن کی شدید مذمت۔ شہباز شریف کہتے ہیں ظالم حکومت بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑ چکی۔ بلاول بھٹو نے کہا عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے والے عمران خان قوم کے مجرم ہیں، قوم انہیں معاف نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف آج احتجاج کرے گی۔ نماز جمعہ کے بعد سندھ بھر میں بھرپور احتجاج کر کے قومی شاہراہوں اور ہائی ویز پر دھرنے دیے جائیں گے۔ لاہور اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں مظاہرے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب سے چیرنگ کراس مال روڈ تک مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف ریلی نکالی جائے گی۔ مہنگائی بین الاقوامی مسئلہ، اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ کابینہ بھی اس کا حل نکالنے کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی نے کہا پاکستان میں مہنگائی لندن سے کم ہے۔ ہماری حکومت کا مسئلہ مہنگائی نہیں بلکہ گڈ گورننس ہے، جس پر قابو پا لیا جائے گا۔ سندھ پولیس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ سے نکال دیں تو کرپشن ختم ہو جاتی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت نے قانون بنایا، پارلیمنٹ نے منظوری دے دی، اب الیکشن کمیشن اس پر عمل کر کے EVM پر ووٹنگ کروائے گا۔ فنومنا گلوبل ہے، ہمیں یہ ایشوز چیلنج پڑ رہے ہیں، ہمیں ایڈریس کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ گورننس کا ایک ایشو ہے جو کہ ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ گیس جو $6.5 میں تھی، $6.5 MMBTU LNG، وہ $30 میں چلے گئی، تو ہم تو نہیں پروڈیوس کر رہے نا گیس۔ سو دیرفور ہم گلوبل، ہمیں گیس تو چاہیے تو ہم خریدتے ہیں۔ تیل کدھر چلا گیا تھا، اب تھوڑا تھوڑا سب کچھ نیچے آنا شروع ہوا ہے، تو سائملٹینیسلی اور چیزیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ ادھر کراچی میں دودھ کی قیمت میں 25 روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ نئی سرکاری قیمت 120 روپے لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، لیکن دودھ فروشوں نے 25 روپے کا اضافہ بھی کم قرار دیتے ہوئے 45 روپے بڑھا کر دودھ 140 روپے فی لیٹر پر فروخت کرنے لگے۔ دودھ فروشوں کا کہنا ہے کہ 120 روپے لیٹر میں دودھ فروخت نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی کو ذاتی حیثیت میں 4 جنوری کو طلب کر لیا۔ کراچی کے عوام کا انتظار ختم۔ وزیراعظم عمران خان آج گرین لائن منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ پہلے 15 روز بسیں ٹرائل پر چلیں گی، جبکہ عوام 25 دسمبر سے سفر کر سکیں گے۔ کراچی گرین لائن منصوبے کے لیے بسیں فراہم کرنے والی کمپنی کے مطابق کراچی کی بسیں لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں چلنے والی بسوں کے مقابلے میں زیادہ جدید ہیں۔ 18 میٹر لمبی بسوں میں 40 نشستیں ہیں۔ پہلے مرحلے میں 80 بسیں روٹ پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے محمد حماد۔ جی حماد، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، وفاقی حکومت کے بجٹ سے گرین لائن منصوبے کا آج افتتاح ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان آج گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کرنے کراچی پہنچیں گے۔ یہ منصوبہ 2016 میں جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا۔ 2016 میں جو جب اس کا آغاز ہوا تو اس کی جو اس کا جو روٹ تھا وہ سرجالی سے لے کے گورمندر تک تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا، جو ٹاور تک جو ہے اس کا روٹ کا جو ہے پلان مرتب ہوا۔ تقریباً اس روٹ پر جو ہے تقریباً 21 جو ہے وہ اسٹیشن ہے بس کے، اور 23 کلومیٹر کا جو ہے طویل یہ سفر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ابھی تک جو یہ گرین لائن بس کا جو تعمیرات ہے وہ جو ہے نمائش چورنگی تک مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے جو آگے کا جو مرحلہ ہے وہ جو ہے کچھ ماہ بعد جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 1,35,000 جو ہے مسافر اس بس میں سفر کر سکیں گے، جبکہ اس کے جو اسٹیشن ہیں وہ سرجانی، نارتھ ناظم آباد، ناگن چورنگی، پٹیل پاڑا اور نمائش چورنگی پر جو ہے قائم ہے۔ اور ادھر مسلم لیگ نون نے ایک روز قبل ہی گرین لائن بس سروس کا علامتی افتتاح کر دیا۔ لیگی رہنماؤں کو انتظامیہ نے ٹریک پر جانے سے روک دیا، جس کے باعث بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی۔ رینجرز کے ساتھ دھکم پیل میں احسن اقبال کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے منصوبہ نون لیگ نے شروع کیا، 2018 میں 90% انفراسٹرکچر بھی مکمل کر دیا تھا۔ کراچی کے عوام 3.25 سال ویگنور بسوں پر دھکے کھاتے رہے۔ PTI حکومت نون لیگ کے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے احسن اقبال کی حیثیت دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی ہے۔ 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تب گرین لائن منصوبے پر کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا سندھ کے لوگ اپنے حقوق کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا سندھ حکومت نے 13 سال میں کراچی کو ایک بس بھی نہیں دی۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि वजीर आला सिंध ने एमक्यूएम और अपोजिशन को सख्त जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत सिटी कौंसिल को किसी भी शहरी को मेयर बनाने का इख्तियार होगा और मेयर के लिए किसी भी शहरी का कौंसिल रुकन होना ज़रूरी नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि नेमतुल्लाह खान या मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर बने तो क्या वो किसी कौंसिल के रुकन थे? PTI के कराची में कोई मुस्तकबिल नहीं, गवर्नर और अपोजिशन को बात करनी थी तो डायरेक्ट आकर करते, मीडिया पर शोर ना मचाते। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग ली हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ मेयर की नशिस्त के इंतखाब में EVM इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन 800 पोलिंग स्टेशन के तमाम पोलिंग बूथ पर अलग अलग EVM इस्तेमाल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फराहमी के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PTI के उम्मीदवार शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने शौकत तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर अपील की समाअत पर महफूज फैसला सुना दिया। एतराज़ उठाया गया था कि शौकत तरीन का वोट इलेक्टोरल रोल में दर्ज नहीं है। शौकत तरीन के वकील ने इस पर बताया कि सेनेट के लिए इलेक्शन कमीशन का वोट सर्टिफिकेट ही काफ़ी होता है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर मजीद 9 जिंदगियां निकल गई, जहां बहक मरीजों की तादाद 28,812 हो गई। 24 घंटे के दौरान 313 नए केसेस रिपोर्ट, 42,978 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासरा 1,758 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मस्बत केसेस की शरह 0.72% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,88,366 हो गई। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खदशा, 3 मुश्तबा मरीजों के सैंपल वजारत सेहत हुकाम ने कराची से इस्लामाबाद भेज दिए। वजारत सेहत हुकाम ने सैंपल NIH को मजीद तस्दीक के लिए भेजे हैं। सानिया सियालकोट केस की रोजाना समाअत जेल के अंदर करने का फैसला हो गया। गिरफ्तार मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने के बारे बाकायदा अहकाम जारी हो गए। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज सियालकोट जेल में जाकर समाअत करेंगे। लाहौर में 34 मुल्जिमान का फोरेंसिक लैब में फोटोग्राफिक टेस्ट, मुल्जिमान को तस्वीर और वीडियो से शनाख्त किया जाएगा। मुल्क भर में आज सानिया सियालकोट पर यौम मज़म्मत मनाया जाएगा। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है उलमा, मशाइख, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाज़ीन सानिया सियालकोट की मज़म्मत करेंगे और अवामुन्नास को तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के कवानीन के हवाले से आगाही देंगे। मुल्क भर में आज सानिया सियालकोट पर यौम मज़म्मत मनाया जाएगा। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है उलमा, मशाइख, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाज़ीन सानिया सियालकोट की मज़म्मत करेंगे और अवामुन्नास को तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के कवानीन के हवाले से आगाही भी देंगे। कराची में औरंगी टाउन में मुबैना जाली मुकाबले में नौजवान की मौत। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने SHO आजम गोपांग को बरतरफ कर दिया। DIG वेस्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है आजम गोपांग ने अपनी तैनातियों के दौरान गफलत और लापरवाही का कई मरतबा मुजाहरा किया। इलाके में जराइम पेशा अनासिर को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान फासले कम करना चाहता है। हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चाहते हैं भारत के साथ तमाम हल तलब मसाइल मुज़ाकरात और बातचीत से हल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS नज़रिए से है, जिसके होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात पेशावर का दौरा। उन्होंने TV और अखबार के दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया। गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शफाफ बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत का वादा है। PTI पर इल्ज़ामात असल में अपोजिशन की चीखें हैं। कोई प्रेशर में नहीं है, बल्कि हमें खुशी होती है जब हमारे मुखालिफिन हम पर तनकीद करते हैं। कभी हम पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब पेशावर क्यों आए। तो इससे हमें खुशी होती है, क्योंकि इससे हमें नज़र आता है कि उनकी चीखें निकल रही हैं और चीखें ऐसी ही निकलती हैं। तो हमें बहुत खुशी है और इनको हम ऐसे ही इंशाअल्लाह चीखें निकलवाते रहेंगे इनकी।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पेशावर में भी इलेक्शन सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ इलाके उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर से सज गए। अवाम भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पुरजोश हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कयूम आफरीदी से। जी बिल्कुल, 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पेशावर में भी 6 तहसील है और इस पर जो है वो जनरल कौंसल, यूथ कौंसलर के अलावा अक़लियत और ख़वातीन जो कौंसलर के उम्मीदवार है उसका मुकाबला होगा। और इस हवाले से शहर में जो है वो जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से आप लोगों का कितना जोश और जज्बा है और इसको आप किस तरह देख रहे हैं। हम तो इसीलिए बल्दियाती इलेक्शन में जो है ना हिस्सा ले रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं और सब बंदों को जो है ना सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में भी इस तरह हुआ था, लोग पैसों पे जो है ना वोट लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी को पैसों पे जो है ना वोट नहीं लेने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ईमानदार बंदे आ जाए और ये जो है ना यूथ यंग जो है ना ये आगे आ जाए। इस वक्त जो है वो तमाम तैयारियां जो है बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुकी है। 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में जिनमें 3 कबायली अजला भी शामिल है, इलेक्शन जो है वो उनका इनेकाद किया जाएगा। जी 1971 जंग के हीरो निशान हैदर पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन के 50वें योम शहादत पर पाक फौज का खिराज अकीदत। DGI SPR ने कहा है कि जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में उनकी कुर्बानी और जुर्रतमंदाना इकदामात ने दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया और 16 भारतीय टैंकों को तबाह कर दिया और साबित किया कि जुर्रत की कोई हद नहीं है। थिएटर वीडियो स्कैंडल अदाकारा ज़ारा खान और महक नूर के खुशबू पर इल्ज़ामात कहती हैं खुशबू ने ही काशिफ को वीडियो बनाने का काम सौंपा, इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती हुई, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। खुशबू खान ने करवाया है। मेरी मैडम, आपने तो अब पूरी दुनिया को अंधा कर दी है। हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस काम में शौक से आता है। हम दुनिया का आखिरी तरीन काम करते हैं। ना मैं अपनी फैमिली को फेस कर पा रही हूँ, जो हकीकत बात है मैं अपने भाई के साथ नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। ना अपने घर वालों के पास जा रही हूँ, ना मैं पीछे अपने खानदान में जा रही हूँ, ना मैं थिएटर में किसी को नजरें मिलाने के काबिल हूँ, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एस्टैब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब ने कहा है कि अख़ुवत फाउंडेशन के ताउन से सिविल सर्विस अकेडमी की जानिब से शुरू किया गया ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है। इससे नौजवान सिविल सर्वेंट्स को गरीब लोगों के मसाइल को समझने और इनका मुनासिब हल तलाश करने में मदद मिलेगी। अख़ुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी कसूर में 49वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान के 3 हफ्तों की तरबियती मश्क़ के अख्ताम पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने सदारत की। तकरीब के शुरका में अख़ुवत फाउंडेशन के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, डायरेक्टर जनरल सिविल सर्वेंट एकेडमी उमर रसूल, सिविल सर्विस अकेडमी की फैकल्टी और 49वीं CTP के अफसरान भी शामिल थे। 49वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए गरीब तबके को दरपेश ज़मीनी हक़ाइक़ का मुशाहदा करने के लिए एक तरबियती मश्क डिज़ाइन की गई। इस मश्क के ज़रिए अफसरों में मुल्क के कम मराआत याफ्ता तबके के लिए हमदर्दी की खुसूसियात को परवान चढ़ाने में मदद की। अख़ुवत फाउंडेशन ने इस मश्क को नफाज में सहूलत फराहम की, जबकि घरानों के इंतखाब और निगरानी में सिविल सर्विस अकेडमी की मदद भी की। मुल्तान में सिटी हाउसिंग फेज़ 2 के हवाले से शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें फेज़ 2 की अप्रूवल और डांसिंग फाउंटेन का ऐलान किया गया है। सिटी हाउसिंग फेज़ 1 में मुनक़िद होने वाली तकरीब में स्टेक होल्डर्स को सिटी हाउसिंग फेज़ 2 के अप्रूवल की खुशखबरी सुनाई गई, जबकि तेज़ी से जारी कामों और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर मार्केटिंग राना जाहिद का कहना था कि सिटी हाउसिंग फेज़ 2 में आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। तारीखी डांसिंग फाउंटेन बनाने जा रहे हैं, जिसे सितंबर 2022 में फंक्शनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, मसाजिद, स्कूल, जिम और कई किनाल पर मुश्तमिल थीम पार्क का काम भी तेज़ी से जारी है। तकरीब में मुल्क भर से सिटी हाउसिंग के डीलर्स और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन बेटे के बाद बेटी के भी बाप बन गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और उनकी अहलिया कैरी ने एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन और कैरी का यह दूसरा बच्चा है। उनके पहले बेटे का नाम वॉल्फ्रेड है, जो अप्रैल 2022 में पैदा हुआ था।
اب واٹس ایپ پر کرپٹو کرنسی کے ذریعے ایک دوسرے کو پیسے بھیجے جا سکیں گے۔ واٹس ایپ نے نیا فیچر متعارف کرا دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ واٹس ایپ کے مطابق صارفین ایک دوسرے کو رقم اپنے چیٹ روم میں ہی بھیج سکیں گے۔ واٹس ایپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ واٹس ایپ پر رقم بھیجنے کی کوئی حد نہیں رکھی گئی اور رقم بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے صارفین سے کوئی اضافی چارجز بھی وصول نہیں کیے جائیں گے۔ واٹس ایپ کی جانب سے یہ فیچر ابھی صرف امریکی صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔